Assalamu alaikum. Going to the part 13 of coordination compounds, an extra part where we will discuss about Sedgwick's theory, stability of complexes, and one more part is there in brief, John Teller effect. Like different theories, VBT, CFT, Werner's theory, Sedgwick's theory is also proposed, which will tell you mainly about the stability of the complexes. Sedgwick's के मुताबिक जब भी कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसमें सेंट्रल मेटल एटम, अगर उस सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस एलिमेंट नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तब वैसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल बोलते हैं. वी कॉल इट एज स्टेबल. So here Sedgwick assumes the electronic concept of the bonding between the metal and the ligands. In Werner's theory, electronic concept was not discussed. Later on, Sedgwick has told that is metal atoms receive electron pairs from the ligands and form coordinate bonds. Same thing has been discussed in VBT also, but in Sedgwick's it considers one more part, that is if the metal atom achieves effective atomic number that is equal to the atomic number of nearest noble gas, then that complex is considered to be stable. If it is not attaining or achieving EAN, that time that complex is said to be unstable, right? लेकिन थोड़े ड्रॉबैक्स है इसके भी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. पहले तो EAN क्या है? EAN is nothing but it stands for effective atomic number. So अभी जस्ट जैसा डिस्कस करें, a complex is said to be stable according to this theory if central metal atom or ion achieves EAN equal to atomic number of nearest noble gas. So effective atomic number is, it is the total number of electrons present around the central metal atom or ion in a complex. What is effective atomic number? Total number of electrons present around the metal atom or ion in a complex. Remember, around the central metal atom और ion बोल रहे हैं, मतलब total number of electrons. पहले तो जो metal है उसके जितने भी electrons है वो लेंगे आप, right? अब जैसे कि atomic number, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो आयरन के न्यूक्लियस के एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में 26 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, राइट? अब वहां पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ कम हो जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आपको कम करना है, राइट? सपोज 26 थे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने हो जाएंगे? 24, राइट? अब उसके बाद और एक चीज क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में लिगैंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं मेटल एटम को, तो ये जब लिगैंड्स से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा वो भी आप ऐड करेंगे. यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेना है आपको, पहले तो उसका एटॉमिक नंबर के उतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के मुताबिक कितने भी इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो आप माइनस करेंगे, फिर लिगैंड के जरिए से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आप ऐड करेंगे. ये हो जाता है टोटल नंबर, right? Total number will be nothing but electrons present in the atom, whether it is in atomic form or the electrons present when it is in its oxidized form, plus the electrons donated by the ligands, right? So that will give you the effective atomic number. Now, if that effective atomic number, जो भी total number of electrons हो जाएंगे, अगर वो नंबर नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से या फिर एटॉमिक नंबर से मैच हो जाता है, तब वैसे कॉम्प्लेक्स को आप स्टेबल बोलना है, राइट? सो दिस इज बेस्ड ऑन ए रूल कॉल्ड एज EAN रूल. According to EAN rule, if the central metal atom or ion achieves EAN value, then only we say it is stable. Otherwise, it is considered as unstable. तो स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे पहले EAN कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं. Then based on that we'll see which compounds are stable and which compounds are unstable, right? So to calculate EAN we have the formula Z EAN is equal to Z minus X plus Y. EAN is equal to Z minus X plus Y.
where EAN is nothing but effective atomic number. Z is the atomic number of the central metal atom. X, its oxidation state in the complex, and Y is total number of electrons donated by the ligands. यहाँ पे Z क्या है? Atomic number of central metal atom. X क्या है? Oxidation state of central metal atom. और Y क्या है? Electrons donated by the ligands. Right? अगर आपको ये तीनों वैल्यूज पता है तो आप उसका EAN कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, आपको पर्टिकुलरली जो मेटल आइटम दिया जाएगा उसका Z वैल्यू एटॉमिक नंबर मालूम रहना है, और कॉम्प्लेक्स में आप X लेके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, वो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे X. और उस कॉम्प्लेक्स में जितने भी लिगेंड्स हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, बिकॉज वन लिगेंड it will donate one electron pair, means 2 electrons will be donated, right? So that will give you the value of Y. So if you know these all values, you will get the EAN. अगर ये EAN कोई नोबल गैस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है तब उसको हम बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, नहीं होता है तो वी कंसिडर इट एज अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू सिडविक्स थियरी. राइट, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सो फॉर एग्जांपल विल टेक पोटेशियम फेरोसाइनाइड लेता हूँ, K4FeCN6. अब यहाँ पे इस काउंटर आयोन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉम्प्लेक्स पेयर के ऊपर फोकस करना है, कॉम्प्लेक्स पेयर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि ये आयोनिक पार्ट, आयोनाइजेशन स्फीयर का कुछ काम नहीं रहेगा यहाँ पे, सिर्फ आप इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Z, X और Y वैल्यूज़ आपको जो है ये कॉम्प्लेक्स पेयर से ही मिल जाएगी. राइट, तो आपको क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट द EAN ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स. सेंट्रल मेटल आइटम जो भी है उसका EAN वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पे आपको ये स्टेबल है या अनस्टेबल है वो पूछा जाएगा. तो यहाँ पे EAN कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी हमने देखा है, EAN इज इक्वल टू Z माइनस X प्लस Y. अब देखते हैं ये तीनों वैल्यूज आयरन के लिए क्या क्या है. Z वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, ये कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज 26. राइट, अब देखते हैं X क्या है. X मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स. कैलकुलेट करेंगे. पोटेशियम कितने हैं? 4. पोटेशियम का चार्ज होता है 1, प्लस आयरन को हम लेंगे X, प्लस साइनाइड कितने हैं? 6. साइनाइड का चार्ज होता है -1. ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है क्योंकि ये अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है. सो यहाँ पे हम इक्वल टू क्या करते हैं? 0. क्या होगा अभी यहाँ पे? 4 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. x you will get equal to 2. राइट, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2. y क्या है देखते हैं. y is nothing but number of electrons donated by ligands. number of electrons donated by ligands. कितने ligands हैं यहाँ पे? 6. और ये पूरे 6 मोनोडेंटेट है, तो number of ligands 6. each ligand will donate 2 electrons. one electron pair means 2 electrons, that is equal to 12. राइट, सो y की वैल्यू हो गई 12. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1 electron pair means 2 electrons. each ligand will donate 2 electrons. totally 6 ligands are there, 6 2s are 12. अब कैलकुलेट करो. EAN देखेंगे कितना आता है. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 26 माइनस 2 प्लस 12. 26 माइनस 2 24 होगा, 24 में 12 मिला लो 36 होगा.
So EAN value got equal to 36. 36 एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का, राइट? क्योंकि यहाँ पे जब EN कैलकुलेट करते हैं 3D सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट स्टार्ट होते हैं फोर्थ पीरियड में, यानी कि 3D सीरीज में, और फोर्थ पीरियड का एंडिंग एलिमेंट है, नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट है क्रिप्टॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादातर क्रिप्टॉन से मैच हो जाते हैं, या फिर जेनॉन से मैच हो जाते हैं, या फिर रेडॉन से मैच हो जाते हैं, राइट? सो क्रिप्टॉन जेनॉन कॉमन है, क्योंकि 3D 4D सीरीज 5D सीरीज के लिए रेडॉन आता है, राइट? तो अगर या तो क्रिप्टॉन से मैच होना है दैट इज 36, या फिर जेनॉन से 54 आना है, या फिर रेडॉन से 86 आना है। 3D सीरीज के जो भी कॉम्प्लेक्स रहते हैं नियरली 36 फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्रिप्टॉन के बराबर होता है। 4D सीरीज वाले उनका EN वैल्यू नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होता है, रेडॉन जेनॉन 54 आना है, और 5D सीरीज के लिए नियरेस्ट नोबल गैस होता है रेडॉन, तो वहाँ पे आपको 86 EAN आना है। अब खैर यहाँ पे आयरन 3D सीरीज एलिमेंट है, तो नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट इसका क्रिप्टॉन है, सो यू गॉट द वैल्यू एज 36, सो इक्वल टू 36, एग्जैक्ट 36 आ रहा है। तो इसके मुताबिक सिडविक थियरी के मुताबिक दिस कंपाउंड इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल, right? This compound is considered to be stable because its EAN value is equal to the nearest atomic number of nearest noble gas, right? और एक एग्जांपल लेते हैं। I will take cobalt complex. Now, if you go with this complex, again we'll see what are the values of Z, X and Y. पहले तो हम इसका Z वैल्यू लिखेंगे, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, राइट? नेक्स्ट इसका X वैल्यू यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए कोबाल्ट को हम लेंगे X प्लस, अमाइन है 6 है, अमाइन अमाइन का चार्ज होता है 0, प्लस क्लोराइड है बाहर आयोनाइजेशन स्फीयर में 3 इंटू क्लोराइड का चार्ज होता है -1 इक्वल टू 0। सो x प्लस 0 -3 equal to 0, x equal to 3, right? So oxidation state of cobalt in this complex is 3. Next coming to y. y क्या आएगा? Number of ligands are how many? 6. Monodentate है, so each ligand will donate 2 electrons, means 1 electron pair. So 6 2s are 12, right? अब कैलकुलेट करो EAN वैल्यू। EAN is equal to Z minus X plus Y। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 27 है एटॉमिक नंबर, माइनस X कितना है 3, प्लस Y कितना मिला 12। 27 minus 3 24, plus 12, again you got equal to 36, right? Means EAN value is 36, it is equal to atomic number of krypton, so it obeys EAN rule and it is considered to be stable. It is obeying EAN rule because EAN value is becoming equal to the atomic number of nearest noble gas, so it is said to be stable. ठीक है? We'll take one more example. Dicyanido argentate 1 ion, right?
Z वैल्यू, सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, X वैल्यू, ऑक्सीडेशन स्टेट देखने कितना आता है, सिल्वर को लेंगे हम X प्लस साइनाइडो 2 हैं, 2 इंटू साइनाइडो का चार्ज है -1 इक्वल टू अनायन फॉर्मूला ही दिए हैं क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन आपको मेंशन नहीं है, तो आप ये ब्रैकेट का ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल टू के बाद लिखेंगे -1। न्यूट्रल रहता तो 0 लिखते थे, क्योंकि आप काउंटर आयन नहीं दिए तो ये ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है वही आप इक्वल टू के बाद लिखेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे, x -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 plus 2, that is equal to 1. So oxidation state of silver in this complex is equal to 1. Z वैल्यू हो गई, X वैल्यू हो गई, अब होता है Y। कितने लिगेंड्स है भी, 2 into 2 electrons will be donated by each ligand, that is equal to 4, right? It is equal to 4. तीनों वैल्यूज मिल गए, तो EAN देखो अभी क्या आएगा, EAN is equal to Z minus X plus Y, that is equal to Z कितना है 47, X कितना है 1 प्लस इलेक्ट्रॉन्स Y वैल्यू कितना है 4। सो आंसर आ रहा है 50, 47 माइनस 1 46 प्लस 4 50, राइट। अब क्या हो गया 50, नियरेस्ट अगर सिल्वर की बात करेंगे तो ये 4D सीरीज में आता है, नियरेस्ट नोबल गैस एलिमेंट आता है जेनॉन, 54 वैल्यू आना था लेकिन आपको आ रहा है 50, means EAN is not equal to atomic number of nearest noble gas, so it is not stable, it is considered to be unstable, right? It is considered to be unstable because EAN value is not becoming equal to the noble gas configuration, atomic number of nearest noble gas. Say for example, अगर मैं ये ऐसा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, यहाँ पे 4 लिगेंड्स अगर ले लिया, तो 4 लिगेंड्स लेऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तब ये 54 हो जाएगा। तब 54 मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन, दैट टाइम वी कॉल दैट कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी स्टेबल। तो ओवरऑल आपको स्टेबिलिटी क्या बेसिस पे बोलना है, अगर EAN वैल्यू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, नोबल गैस एटॉमिक नंबर के बराबर हो रहा है तो स्टेबल, अगर अनइक्वल हो रहा है तो अनस्टेबल। ओके, फॉर एग्जांपल देखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, निकल का Z वैल्यू होता है, एटॉमिक नंबर है 28, X वैल्यू कैलकुलेट करना है, Y वैल्यू चेक करना है। X वैल्यू निकल X लेंगे प्लस 4 कार्बोनिल लिगेंड्स है, कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड्स है तो इनका चार्ज होता है 0 इक्वल टू, ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है मतलब 0, so X is equal to 0. So in this complex oxidation state of nickel is equal to 0. Y, 4 ligands, each ligand donates 2 electrons. Remember ये पूरे monodentate आ रहे हैं, इस वजह से हम 2 लेते जा रहे हैं। Okay, that is equal to 8. Y is equal to 8. So EAN is equal to Z value 28 minus X value 0 plus Y value 8. 28 plus 8 36. So it obeys EAN rule. ठीक है, पोटेशियम फेरी साइनाइड लेंगे, फेरोसाइनाइड डिस्कस करें, फेरी साइनाइड लेंगे, फेरी साइनाइड में
एटॉमिक नंबर आयरन का वही रहेगा 26, सिर्फ यहाँ पे x चेंज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप आयरन का x लेके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे पहले केस में फेरो में K4 था, यहाँ पे K3 है, तो यहाँ पे आयरन का चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 1 पोटेशियम के लिए आयरन हम लेते हैं x प्लस 6 साइनाइड, साइनाइड का चार्ज है -1 इक्वल टू 0। सो 3 + x -6 इक्वल टू 0, x you will get equal to 3। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है फेरिक फॉर्म में, एंड वी नो दैट फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस। लेकिन देखो यहाँ पे होता क्या है, y is equal to ligand 6 multiplied by 2 that is equal to 12। तो जब आप यहाँ पे EAN कैलकुलेट करेंगे, EAN is equal to Z वैल्यू कितना है 26 -3 + 12, 26 - 3 23, 23 + 12 35। It is not equal to 36, you are getting 35। 35 means it is not obeying EAN rule, because EAN value is not equal to atomic number of nearest noble gas, hence it is treated as unstable। लेकिन प्रैक्टिकली फेरीसाइनाइड स्टेबल है, फेरोसाइनाइड अनस्टेबल है, क्योंकि फेरोसाइनाइड स्लोली फेरीसाइनाइड में ऑक्सीडाइज होकर फेरीसाइनाइड में चेंज हो जाता है। तो ये ड्रॉबैक है इस थियरी का। इवन दो यू आर गेटिंग EAN values for some complexes as they are obeying EAN rule, but practically those compounds will be unstable, and for some complexes you are getting EAN value not equal to the atomic number of noble gases, but practically those compounds are stable, right? EAN value एग्जैक्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कंपाउंड्स अनस्टेबल भी होते हैं, और किसी का इक्वल टू 36 या फिर इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबल गैस नहीं आता है, फिर भी वो प्रैक्टिकली स्टेबल रहते हैं, right? So that is the drawback of this Sidgwick's theory. So based on this EN value you can't confirmly tell a given complex is stable or unstable। तकरीबन कॉम्प्लेक्स के लिए मैच हो जाता है, करेक्ट होता है, लेकिन सेलेक्टेड कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकली स्टेबल है लेकिन उनका EN वैल्यू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आता है, राइट? तो इस तरह का आपको कैलकुलेशन करना रहता है। How to calculate EAN? So you have to use the formula EAN is equal to Z minus X plus Y। कोई भी टर्म ले सकते हैं आप, A minus B plus C कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट और एटॉमिक नंबर लेना है, उसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है, तब जाके आपको EAN मिलता है। ओके, नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। द अदर मेथड हाउ वी कैलकुलेट or find out the stability of complexes. So stability of complexes refers to the degree of association between the two species involved in the state of equilibrium। यानी कि मेटल और लिगैंड जब कंबाइन होते हैं, इनके एसोसिएशन के बेसिस पे हम उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं। ज़्यादा एसोसिएशन हो गया तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एसोसिएशन कम है तो स्टेबिलिटी कम रहेगी। जैसे कि एग्जांपल, M is some metal atom where it is combining with some ligand L, you will get first Ml as the complex, only one ligand has combined। So if you assume this combination association in under equilibrium condition, we write equilibrium constant K1 as Ml divided by M into L, right? Molar concentration of the complex divided by molar concentration of the metal and molar concentration of the ligand। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो तरीका है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, वो हिसाब से आप यहाँ लिखेंगे। फिर से सेकेंड स्टेप में ये कॉम्प्लेक्स जो इसमें एक लिगैंड है, फिर से और लिगैंड कंबाइन हो रहे हैं Ml2, दैट स्टेप विल राइट इट एज K2। इस तरह आप जितने भी लिगैंड्स ऐड अप करते जाएंगे, अलग अलग नए कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएंगे Ml4 टिल दैट यू गॉट K4, और फाइनली आई कैन राइट MLN, nth लिगैंड भी कंबाइन हो गया तो MLN होगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं KN, right? So these K1, K2, K3, they are all called as stepwise stability constants। They are all called as stepwise stability constants, and if you want to calculate the overall stability constant, okay,
what we have to do is we have to take the product of all these three number of stepwise stability constants. Okay, जहाँ पे K1 की वैल्यू ज़्यादा होती है, बाद में K2, K3, K4, लेकिन अगर आपको ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो आप ये पूरे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं. सो हियर stepwise and overall stability constant, like 4 steps are there, so we represent the overall stability constant by beta. 4 steps are involved, so it will be equal to K1 into K2 into K3 into K4, or in general the stability constant or formation constant for a given number of equilibrium constants or stepwise stability constants we calculate by the formula K1 into K2 into K3 and so on till Kn, right? तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट. अगर आपको ये मालूम है तो आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं. कभी कभार इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी पूछा जाता है. स्टेबिलिटी कांस्टेंट देते हैं, आपको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट भी पूछते हैं, या फिर आपको ये स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट देंगे, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछते हैं, तब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है. इट्स रेसिप्रोकल इज कॉल्ड एज instability constant, right? Now the significance of this beta, that is stability constant, is it will tell you about the stability of complexes. Higher the value of beta, more stable is the complex. जितना बीटा वैल्यू ज़्यादा रहेगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी. हाइयर द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, we call the complex is more stable, right? Stability constant, or we also call it as formation constant. Remember, we are assuming here, we have to consider here the association, in to what extent the metal and the ligands associate, that will tell you about the stability. More association, more will be the value of beta. Less association, less will be the value of beta, right? Let's see some factors which affect this stability of complexes. कुछ important factors है वो हम यहाँ पे discuss करेंगे. Charge and size of metal ion, commonly इसको हम बोलेंगे polarizing power. Polarizing power जितना ज़्यादा रहेगा उस complex की stability भी उतनी ही ज़्यादा रहेगी. Polarizing power is nothing but ratio of charge and size. Charge to size ratio is called as polarizing power. Higher the charge, smaller the size of ion, stable is the complex form. Say for example, Fe2 plus ferrous complexes है और फेरिक कॉम्प्लेक्सेस हैं. अब स्टेबिलिटी डिसाइड करना है कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा, फेरस आयन का या फेरिक आयन का. तो आप इजीली बोल सकेंगे ये फैक्टर से चार्ज एंड साइज. हाइयर द चार्ज, इसका चार्ज ज़्यादा है. स्मॉलर द साइज, साइज भी इसी का कम रहेगा क्योंकि चार्ज जब बढ़ता है साइज कम होते जाता है. सो बिटवीन दीज टू stable complex will be formed by ferric compounds. That's why potassium ferricyanide is more stable than ferrocyanide, क्योंकि फेरिसाइनाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और फेरो में ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, राइट? सो हाइयर द चार्ज और स्मॉलर द साइज, और इन जनरल हाइयर द पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जब भी आप देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है. गिवन लिगैंड, द कंबाइंड लिगैंड शुड बी सेम. यहाँ पे भी साइनाइड, यहाँ पे भी साइनाइड रहने के बाद इसको आप स्टेबल लेंगे, राइट? अगर लिगैंड दूसरे हैं तो आपको दूसरे फैक्टर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो फॉर ए गिवन सेम टाइप ऑफ लिगैंड, हाइयर चार्ज आयॉन्स विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कंपेयर टू लोअर चार्ज मेटल आयॉन, राइट? Next, Irving-Williams order. Irving-Williams order. Again, it will tell you about the stabilities of high spin complexes. High spin complexes are those where sp3d2 hybridization takes place. The outer d orbital is involved in hybridization. तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी अगर आपको पता करना है तो ये ऑर्डर फॉलो करना है. दैट इज मैंगनीज से जिंक तक अगर ये आयॉन्स +2 फॉर्म में है
और एक सेम टाइप के लिगेंड्स के साथ अगर ये कंबाइन हो रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स किसका रहेगा और लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, आप ये ऑर्डर से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ये ऑर्डर साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू मूव अक्रॉस द ट्रांजिशन सीरीज, first from scandium to chromium size decreases, then from chromium to copper size remains almost constant, then it finally up to zinc it increases. इन जनरल अगर एग्जैक्ट वैल्यूज देखते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा साइज कम होते ही जाता है, बाद में जो है साइज जो है जिंक के पास इंक्रीज होता है। सो हियर विद द डिक्रीज इन साइज, as we have discussed here, smaller the size, more will be the stability. So here also with the decrease in size, stability of the complexes also increases. तो मैंगनीज से स्मॉलर साइज आयोन फेरस आयोन है, इस वजह से फेरस आयोन के कॉम्प्लेक्सेस सेम लिगैंड गिवन लिगैंड के साथ मैंगनीज के कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इससे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट के रहेंगे, कोबाल्ट से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स निकल के रहेंगे, निकल से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस कॉपर के रहेंगे, और कॉपर के ही कॉम्प्लेक्सेस जिंक से स्टेबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज जिंक का इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, आयोनिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो तब क्या हो जाएगा, फॉर गिवन आयोन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली व्हाट वी से साइज डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यूज देखेंगे तो जिंक आयोन इज स्लाइटली ग्रे लार्जर इन साइज कंपेयर टू कॉपर आयोन, हेंस copper ions will be smaller in size whereas their complex will be more stable. So among all, most stable complexes will be formed by copper, right? So this order, if you remember, you can easily judge or identify which complex will be more stable and which complex will be less stable. Okay, आपको जिंक और कॉपर के कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं विच इज मोर स्टेबल, अगर पूछ रहे हैं सेम लिगेंड्स हैं तो सीधा सीधा आपको सेलेक्ट करना है कॉपर, because as per Irving-Williams order, copper complexes will be more stable compared to zinc. Chelating effect and ring size, another important factor which will tell you about the stability. Chelating effect in the sense nothing but whenever complexes contain chelating ligands, chelating rings when they are present in the complex. Chelating ligands are nothing but bidentate or polydentate ligands which form ring structured complexes. ये हम फर्स्ट सेशंस में पढ़े हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कॉम्प्लेक्स जो भी लिगेंड्स फॉर्म करते हैं उनको हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं चिलेट्स, और इन चिलेटिंग लिगेंड्स से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट, दे इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। मोनोडेंटेड लिगैंड्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स में है उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऐसे कॉम्प्लेक्स में रहेंगे जिसमें बाइडेंटेड लिगैंड्स हैं, और ट्राइडेंटेड है तो और ज़्यादा स्टेबल, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन द चिलेटिंग इफेक्ट। सो complexes containing chelating rings are more stable than complexes with no rings. अब जैसे एग्जाम्पल, if I write like this, cobalt, hexaamine cobalt 3 ion, 6 monodentate amine ligands are there, and I'll write one more complex of cobalt where I'll take ethylene diamine. बाइडेंटेट होता है तो 3 रहेंगे, टोटली कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, यहाँ पे भी 3+, दोनों में प्राइमरी वैलेंसी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में भी 6 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 इंटू डेंटिसिटी 2 है, 6। लेकिन स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पे बाइडेंटेड लिगैंड्स है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाले लिगैंड्स है, सो इट विल बी कंसिडर टू बी मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो जब भी बाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, right? So complexes containing chelating rings means which form ring structures are more stable than complexes with no rings. The monodentate ligands will not form any ring structures. Bidentate and polydentate ligands only will form ring structures. Larger the number of chelating rings, more is the stability of the complex. अब जैसे कि यहाँ पे 6 अमाइन मॉलिक्यूल्स है, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ
अमाइन आई राइट और एक इथिलीन डायमाइन लेता हूँ। इसमें अब दोनों भी है, मोनोडेंटेड लिगैंड भी है 4 और एक बाइडेंटेड लिगैंड। अब स्टेबिलिटी किसको प्रेफरेंस देंगे? फिर से यही रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रिंग चिलेटिंग लिगैंड्स रहेंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ते जाता है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, राइट? सो लार्जर द नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. Larger the size of the ring or atoms in the ring, more stable is the complex. Larger the size of the ring is nothing but the density should be more. जैसे कि hexadentate, it is a larger species, larger ligand which will form totally 6 coordinate bonds at a time. So वैसे ligand से, वैसे chelating ligand से stability और ज़्यादा होते जाती है, right? Next, basic character of ligand. Basic character or ligands are nothing but they are Lewis bases, and in that ligands, if any ligand is having the ability to donate electrons easily, those ligands we say they are more basic because they are easily donating their ligands. That time stability of that complex increases since they can donate electrons easily, right? खासकर नेगेटिव अनायॉन्स, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स में जो नेगेटिव अनायॉन्स हैं, साइनाइडो वगैरह है, साइनाइडो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी, इसके कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी. ओके,